नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। सोल परफेक्शन, फ्रांसिन मटेरियल, असर्ट फ्रॉम सोल परफेक्शन, सिलुनिया ब्राउन्स, channel material. Suicide is very negative exit point. It is never advocated. It is never an irrational part of the plan. No one escapes ever by suicide. The soul must immediately do it all over again. That person has to come right back in with all the trauma and depression. They go right back into another life that is almost identical. If you can never say that a suicide is a pawn situation, as number is nothing is ever lost because other people can learn from it. But a soul does not pick suicide to help others learn. Not it breaks your contract with God. When they go to the other side, suiciders are immediately cocooned. We wrap and suspend them right away and they sleep. We make them go back right away. When a soul has committed suicide, very rarely do ever attempt it again. They remember very when enlightenment comes, it can have unexpected consequences as you begin to see why you put yourself if through so many things. You might need to dissolve some relationship but don't come away then feeling like why did I put up with this for so long. With knowledge comes understanding. You must really grit your teeth then when there is no longer any joy and it has become a chore, you are not learning anything but only setting up a negative rebellion in your own soul, and it is not creating any good for the other party either. Realize that in the final outcome, all relations are transient. When the two of you come back home, you will understand it. आइए दोस्तों, इस पर दोबारा ध्यान से सुनते हैं। सोल परफेक्शन, फ्रांसिन मटेरियल, असर फ्रॉम सिलिनिया ब्राउन्स, सोल परफेक्शन, channel material. Suicide is very negative exit point. It is never advocated. It is never an intrinsic part of the plan. No one escapes ever by suicide. The soul must immediately do it all over again. That person has to come right back in with all the trauma and depression. They go right back into another life that is almost identical. You can never say that a suicide is a pawn situation as murder. Nothing in ever lost because other people can learn from it, but a soul does not pick suicide to help others learn. No, it breaks your contract of with God. When they go to other side, suiciders are immediately cocooned. We wrap and suspend them right away and they sleep. We make them go back right away when a soul has committed suicide. Very rarely do ever attempt it again. They remember very well. When enlightenment comes, it can have unexpected consequences as you begin to see why you put yourself through so many things. You might need to dissolve some relationships, but do not come away then feeling like, why did I put up with this for so long? With knowledge comes understanding. You must really grit your teeth then when there is no longer any joy and it has become a chore. You are not learning anything but only setting up a negative rebellion in your own soul, and it is not creating any good for the other party either. Realize that in the final outcome, all relations are transient. When the two of you come back home, you will understand it. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसीसी सामग्री, सिल्विया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश। चैनल सामग्री, आत्महत्या एक बहुत ही नकारात्मक निकास बिंदु है। इसकी कभी वकालत नहीं की जाती। यह कभी भी
योजना का आंतरिक हिस्सा नहीं होता। आत्महत्या करके कोई बच नहीं सकता। आत्मा को तुरंत ही यह सब फिर से करना पड़ता है जब व्यक्ति को सारे आघात और अवसाद के साथ वापस आना पड़ता है। वे सब कुछ फिर से एक दूसरे जीवन में चले जाते हैं जो लगभग एक जैसा होता है। आप कभी नहीं कह सकते कि आत्महत्या एक मोहरा स्थिति है जैसा कि हत्या है। कभी कुछ नहीं खोया जाता क्योंकि दूसरे लोग इससे सीख सकते हैं, लेकिन कोई आत्मा दूसरे से सीखने में मदद करने के लिए आत्महत्या नहीं करती। नहीं, इससे परमेश्वर के साथ आपका अनुबंध टूट जाता है। जब वे दूसरी तरफ जाते हैं तो आत्महत्या करने वालों को तुरंत कोकून में डाल दिया जाता है। हम उन्हें तुरंत लपेट कर लटका देते हैं और वे सो जाते हैं। हम उन्हें तुरंत वापस भेज देते हैं। जब कोई आत्मा आत्महत्या कर लेती है तो बहुत कम ही ऐसा दोबारा करने का कोशिश करती है। उन्हें यह बात अच्छी तरह याद रहती है। जब आत्मज्ञान आता है तो अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे आप यह समझने लगते हैं कि आप खुद को इतनी सारी चीजों से क्यों गुजरते हैं, आपको कुछ रिश्तों को खत्म करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर ऐसा महसूस करते वापस मत आइए कि मैंने इतने लंबे समय तक यह सब क्यों सहन किया। ज्ञान के साथ समझ आती है। आपको वास्तव में तब अपने दांत पीसने चाहिए जब कोई खुशी नहीं रह जाती और यह एक काम बन जाता है। आप कुछ भी नहीं सीख रहे बल्कि केवल अपनी आत्मा को एक नकारात्मक विद्रोह की स्थापना कर रहे हैं और यह दूसरे पक्ष के लिए भी कोई अच्छा नहीं बन रहा है। एहसास करें कि अंतिम परिणाम में सभी रिश्ते क्षण भंगुर हैं। जब आप दोनों घर वापस आएंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आत्मा की पूर्णता, फ्रांसिस सामग्री, सिल्विया ब्राउन की पुस्तक सोल परफेक्शन से कुछ अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री, आत्महत्या एक बहुत ही नकारात्मक निकास बिंदु है। इसकी कभी वकालत नहीं की जाती। यह कभी भी योजना का आंतरिक हिस्सा नहीं होता। आत्महत्या करके कोई बच नहीं सकता। आत्मा को तुरंत ही यह फिर से करना पड़ता है। उस व्यक्ति को सारे आघात और अवसाद के साथ वापस आना पड़ता है। वे सब फिर से एक दूसरे जीवन में चले जाते हैं जो लगभग एक जैसा होता है। आप कभी नहीं कह सकते कि आत्महत्या एक मोहरा स्थिति है जैसा कि हत्या है। कभी कुछ नहीं खोया जाता क्योंकि दूसरे लोग इससे सीख सकते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा दूसरों से सीखने में मदद करने के लिए आत्महत्या नहीं करती। नहीं, इससे परमेश्वर के साथ आपका अनुबंध जाता है। जब वे दूसरी तरफ जाते हैं तो आत्महत्या करने वालों को कुकुन में डाल दिया जाता है। हम उन्हें तुरंत लपेट कर लटका देते हैं और वे सो जाते हैं। हम उन्हें तुरंत वापस भेज देते हैं। जब कोई आत्मा आत्महत्या कर लेती है तो बहुत कम ही ऐसा दोबारा करने की कोशिश करती है। उन्हें ये बहुत बहुत अच्छी तरह से ये बात याद रहती है। जब आत्मा ज्ञान आता है तो अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे आप यह समझने लगते हैं कि आप खुद को इतनी सारी चीजों से क्यों गुजरते हैं, आपको कुछ रिश्तों को खत्म करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर ऐसा महसूस करते हुए वापस मत आइए कि मैंने इतने लंबे समय तक यह सब क्यों सहन किया। ज्ञान के साथ समझ आती है। आपको वास्तव में तब अपने दांत पीसने चाहिए जब कोई खुशी नहीं रह जाती और यह काम बन जाता है। आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं बल्कि केवल अपनी आत्मा में एक नकारात्मक विद्रोह की स्थापना कर रहे हैं और यह दूसरे पक्ष के लिए भी कोई अच्छा नहीं बन रहा है। एहसास करें कि अंतिम परिणाम में सभी रिश्ते क्षणभंगुर है। जब आप दोनों घर वापस आएंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।